young guys with the multicultural academic tradition of India are going to discuss the issue of nationalism of Tagore. Tagore's nationalism is not merely a political concept, rather, it is humanitarian in the nature. Tagore's nationalism is national contribution, international application, and universal importance. So, today's star and the son of the future is going to deliver their part. Now over to Devans Dikshit and Arup Mathi to deliver their lecture. Good evening, everybody. Uh, First of all, I'd like to thank this platform for giving me this opportunity to deliver the lecture on such a huge personality and his ideology, which I think is much needed in the time we are living today. And I'll ask Arup Dada to please share the screen and start presenting the PPT to the meeting. Okay, so now we start. Everybody knows who's Rabindranath Tagore. He needs no introduction, whether it is in music, poetry, literature, or even when it comes to the local politics, the regional politics of Bengal, where he has been such an influential man. He is known as the forerunner of Bengali Renaissance, the father of contextual modernism in Bengali literature. And apart from that, it is a well known fact that in 1913 he won the Nobel Prize for Literature for his collection of poems called Gitanjali. But today we are not going to discuss the excellence he has shown in literature or how he reformed Bengali music traditions. He actually, one fact which I would like to point out is that he gave a whole category of music to Bengal, which is known as Rabindra Sangeet today. So he was that influential. But today, I read this wonderful book, Nationalism by Tagore, and he has given such profound explanations to what the society is suffering today, nearly a century ago, that I think that sharing this and explaining it to people is very necessary right now. Now, the topic of today's lecture is Tagore's nationalism. Under it, we'll study the idea of the nation, process of nation building, and most emphasis will be given to Tagore's humanism because in one of his lectures at Stanford, he once said that we can run behind material as much as I want, but my final abode will always be humanity. So now let's start this lecture. The first question, the primary question which comes to our mind is what is the nation? So, in that context, Tagore writes in this book that a nation, in the sense of political and economic union of the people, is that aspect which a whole population assumes when organized for a mechanical purpose. तो गुरुदेव यहाँ पे ये कह रहे हैं कि first of all there should be a segregation between society and nation. Nation is not society. Society, according to Gurudev, is a very natural, naturally complex phenomena, but it is organic. People come together because it is their destiny to come together. They cannot survive alone. Individualism is that is by that. But society is natural because people cater to each other's needs and they have some good moral personality behind the social configuration of a society. पर नेशन बनने में क्या होता है? नेशन बनने में टैगोर क्या कह रहे हैं कि जब इंडिविजुअल सिटीजन्स का समूह एक साथ आता है, लेकिन कोई बड़े गोल को अचीव करने के लिए नहीं, मानवता के कोई उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए नहीं, लेकिन पॉलिटिकल या सोशल डायमेंशन में कुछ ऐसा पाने के लिए कि उन लोगों को एक मशीन की तरह पे ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। अब ये मशीन जो है यही नेशन है। नेशन जैसे कि हमारे जो इंडियन ट्रेडिशंस में खास करके जो कंटेम्पोररी नेशनलिज्म आईएनसी का जो नेशनलिज्म था, उसमें नेशन को एक बहुत बड़ी धारणा दे दी गई। इनफैक्ट बिपिन चंद्र पाल ने उसको विराट महापुरुष भी कहा कि उसको तो बनना ही बनना है एक दिन। लेकिन टैगोर ये कह रहे हैं कि नेशन कोई बहुत बड़ी आइडेंटिटी नहीं, ये वो आइडेंटिटी है जो एक इंडिविजुअल का ग्रुप अटेन कर लेता है किसी मैकेनिकल पर्पस के लिए, किसी सेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिक। दूसरा पॉइंट ये है that the living one point is left still. Living bonds of society are breaking up and giving place to merely mechanical organization. तो यही बात मैं अभी आपसे कह रहा था कि जैसे सोसाइटी जो है, सोसाइटी बहुत नेचुरल है। वो अपने आप इंसान जब एक साथ आते हैं, एक समूह में आते हैं, एक समाज का निर्माण होता है,
उस समाज में हर आदमी इतना काम कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। समाज का भी निर्माण व्यक्तित्व के निर्माण के साथ या व्यक्ति के निर्माण के साथ पैरेलल चलता रहता है। लेकिन नेशन में क्या है कि वो जो जीवित वो है ढांचे हैं जुड़ाव के, वो जीवित ढांचे चले जाते हैं, दे आर ब्रेकिंग अप, और उसकी जगह पे पूरा प्रोफेशनल फॉर्मल मैकेनिकल पर्पस हो जाता है। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट मेयरली ह्यूमन बट दे आर कंप्लीटली मशीन्स सर्विंग एज द पार्ट्स ऑफ सम बिगर मशीन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब टैगोर ने नेशन पे इतना काम किया है, he has profoundly described each aspect of nation. First he talks about the rise of nation. In medieval era, the simple and the natural man was engaged in trying to find out the reconciliation in the conflict between the flesh and the spirit. So टैगोर ने नेशन की जो जर्नी है वो medieval era से रेट्रोस्पेक्ट में देखते हुए कहा कि medieval टाइम में क्या था। medieval टाइम में यूरोप में ये था कि रिलीजन का प्रभाव था समाज पे, कई चीजें हो रही थी, साइंस अभी उतनी उठी नहीं थी। तो उसमें हुआ ये कि इंसान जो है वो अपनी मटेरियल नीड्स के साथ साथ अपने हायर मॉरल और स्पिरिचुअल पर्पस की तरफ भी झुका हुआ था। लोगों में मोरालिटी थी, जेनरोसिटी थी, एक दूसरे का दर्द और दुख समझने की क्षमता थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, देन केम द एज ऑफ इंटेलेक्ट, ऑफ साइंस। वी ऑल नो दैट द इंटेलेक्ट इज इम्पर्सनल, माइंड कैन बी डिटैच्ड फ्रॉम द पर्सनल मैन। तो टैगोर कह रहे हैं कि एनलाइटनमेंट के बाद से जैसे जैसे साइंस की तरक्की होने लगी, इंटेलेक्ट की तरक्की, इंसान का मस्तिष्क या दिमाग जो है वो डेवलप हुआ, लेकिन जो उसकी आत्मा थी, जो उसके अंदर की स्पिरिचुअल पावर्स थी, वो उस स्पीड से डेवलप नहीं हो पाई जिस स्पीड से उसका दिमाग डेवलप हुआ। अब दिमाग जो है वो एक बहुत रैशनल चीज है। वो रैशनल चीज इसलिए है कि उसको मोरालिटी से मतलब नहीं है, उसको प्रोग्रेस से मतलब है। इसके लिए एक बहुत खूबसूरत उदाहरण भी दिया है टैगोर ने इस बुक में, जो कहते हैं कि अगर आप किसी भाषाविद से कहेंगे, एक भाषाविद को अगर आप किसी पोयम का या किसी पैसेज का, बहुत खूबसूरत से पैसेज का दर्शन देंगे, तो वो कहेगा इसमें कि वो इसकी पूरी टेक्निकलिटीज, कौन सा अलंकार इस्तेमाल किया है, कौन सा मेटाफर इस्तेमाल किया है, क्या सिमिली है, क्या क्या है, क्या क्या है, सब आपके सामने खोल के रख देगा। लेकिन अगर जब तक वो अपनी मोरालिटी, अपने अंदर की जो खूबसूरती को पहचानने की क्षमता है, जब तक वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, वो उस पैसेज की खूबसूरती को नहीं पकड़ पाएगा। ये सेम चीज है कि इंसान ने अपने इंटेलेक्ट को, अपने साइंटिफिक टेम्पर को इतना आगे बढ़ा दिया कि उसकी मोरालिटी, उसका जो जेनरोसिटी, ये सब जो हायर पर्पस रह जाते थे वो पीछे छूट गए। Our intellects are ascetic, who wear no clothes, take no food, has no wishes, feels no love or hatred or pity or human limitations. तो इंसान की जो बंदिशें हैं, इंसान की जो कैपेबिलिटीज हैं और नॉन कैपेबिलिटीज हैं, उनको एडमायर करने के लिए या उनके उनको जस्ट एक्सेप्ट कर लेने के लिए इंटेलेक्ट राजी नहीं है। इंटेलेक्ट हैज टू पुश, लेकिन इस पुश करने के टाइम में वो ये भूल जाता है कि जो दूसरे लोग पीछे छूट जा रहे हैं, या फिर जो वो खुद ही, उसका एक सोल का एक पार्ट या उसकी बॉडी का एक पार्ट जो पीछे छूट जा रहा है, वो पीछे छूट गया और उसका डेवलपमेंट उस स्पीड में नहीं हो पाया। इसके लिए एक और एग्जांपल बहुत अच्छा टैगोर देते हैं कि एक जिराफ है। अब उस जिराफ में क्या हुआ कि उसकी गर्दन और सर बहुत ऊपर हो गए, इतनी ऊपर हो गए हैं कि पहले वो पेड़ के नीचे वाले पत्ते खा पाता था खाली, अब वो पेड़ के ऊपर वाले पत्ते भी खाने लगा। लेकिन उससे हुआ ये कि जब तक वो पत्ते चबाता रहा और कद उसका बढ़ता रहा, गर्दन उसकी लंबी होती रही, वो खाना जो वो खा रहा था वो उसके ऑर्गन्स तक पहुंच ही नहीं पाया। तो ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिला, और वो सेम 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 जो सीन है, सेम सीन हो रहा है आपका साइंस के साथ, कि साइंस जो है वो एक आयाम है मानव सभ्यता का, मानव ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, लेकिन वो इतनी आगे निकल गई है कि जो ह्यूमन पार्ट था पीछे का, वो ह्यूमन पार्ट छूट गया। और तभी नेशंस का राइज हुआ, जब लोग अपने ह्यूमन पार्ट को छोड़ के मैकेनिकली ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्टर्न नेशनलिज्म। अब प्रॉब्लम्स में एक चीज जो मैंने गौर करी और गौर करने लायक भी है, कि टैगोर ने बताया है कि जैसे जैसे वेस्ट में नेशनलिज्म का उदय हुआ है, अलग अलग तरीके के नेशंस डेवलप हुए, और फिर नेशंस के बाद उनके जो अंतर्द्वंद चले हैं, सोशियो पॉलिटिकल अंतर्द्वंद जो उनके चलते रहे, उसमें सबको पता है कि एज ऑफ इंपीरियलिज्म उसके बाद उसी के कारण हुआ, या एज ऑफ कॉलोनियलिज्म जिसको कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड को अपना गुलाम बना लिया उन्होंने। तो प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्टर्न नेशनलिज्म को सिग्निफिकेंटली पॉइंट बाय पॉइंट टैगोर ने हाईलाइट किया है कि वेस्ट में क्या हुआ, जिससे कई सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठा हो गई हैं, जिसको अभी भी वेस्ट वो नहीं कर रहा है, ना उसको एडमिनिस्टर कर रहा है, ना ही उसको इवन एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में और आगे उभर के आएंगी। दे आर द कंफ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट।
स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो प्योरली वेस्टर्न है। अगर हम लोग ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलियन ऑस्टेनबर्ग देखें 1648, तो वहां से जब स्टेट उदय हो रहा है तो देख रहे हैं कि इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट का एक कंफ्लिक्ट है। लेबर एंड कैपिटल, सबको पता है कि लेबर एंड कैपिटल के लिए तो कई के डॉक्ट्रिन्स आइडियोलॉजीज बन गई इसी कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। मैन एंड द वुमन, conflict between greed of material gain and the spiritual life of man, the organized selfishness of nations and the higher ideal of humanity। यही बात उतनी देर से मैं आपको कह रहा हूँ कि ह्यूमनिज्म जो है, ह्यूमैनिटी जो है वो पीछे छूट गई और जो गेन था वो आगे चला गया। The conflict between all the ugly complexities of state and commerce and the natural instincts of man trying for simplicity and beauty। तो टैगोर ये कह रहे हैं कि इंसान का जो बेसिक नेचर है वो सिंपल, वो सौंदर्य चाहता है, सुंदरता चाहता है, सच्चाई चाहता है, इंसानियत चाहता है, लेकिन नेशंस के बिल्डिंग और उनके प्रोसेस में ऐसा एक खेल हुआ है इंसान के साथ कि वो इन सबको पीछे छोड़ के स्टेट, कॉमर्स, गेन, प्रॉफिट, इन सब चीजों के बारे में पीछे पागल हो गया। नेक्स्ट स्लाइड करो। अब द वेस्ट अ सोर्स ऑफ एडमिरेशन। एक चीज जो टैगोर के चिंतन की बहुत खास बात है कि उन्होंने सिरे से किसी भी चीज को नहीं निकाला। उन्होंने अगर वेस्ट की भी बुराई करी तो बिना उसकी अच्छाई गिनाए उसकी बुराई नहीं करी। और ये जो अच्छाइयां जो वेस्ट ने दी मानव सभ्यता को, मानव इतिहास को, उसमें टैगोर ये कहते हैं कि जो थोड़ी सी इंसानियत, जो थोड़ी सी जहनियत बाकी थी इंसान के अंदर, उसने इंसान को कंपेल किया कि वो ये सब अच्छाइयां वेस्ट से निकाल के और दुनिया के प्लेटफॉर्म पे रख दे, वो सोर्स ऑफ एडमिरेशन बन जाए। और वो सोर्स ऑफ एडमिरेशन किन किन मामलों में है? टैगोर सेज दैट द यूरोप हु in her literature and her art forced out an inexhaustible cascade of truth and beauty, floating all, fitting all countries and all time. The Europe who, with a mind which is titanic in its untiring power, is sweeping the height and depth of the universe, winning her homage of knowledge from the infinitely great and the infinitely small। तो यूरोप ने जैसे स्टडी करी है साइंस की तरक्की को भी इसमें विशेष पैसेज में अगर हम लोग देखते हैं तो टैगोर नकार नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूरोप ने बहुत तरक्की करी है और उसमें काफी कंफर्टेबल भी लाइफ कर दी है इंसानों की, लेकिन एक बार आप कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके बाद आपका जो पर्पस है, मॉरल पर्पस है, स्पिरिचुअल पर्पस है, वो कहीं और जाना चाहिए। वो अगर आप अपने कंफर्ट को ही आगे बढ़ाते रहेंगे, बहुत आगे बढ़ा देंगे, तो वो भोग विलासिता में चला जाएगा। और भोग विलासिता से एक बड़ा डर सा मिलता है टैगोर की, अगर हम लोग पढ़ते हैं थिंकिंग थॉट आइडियोलॉजीज को। नेक्स्ट छोड़ देना। Now coming to the problem of India. After analyzing the problems of the West, what are the good points of the West, the pros and cons of Western civilization, Tagore comes to India. And in Indian context, he specifically points out that the problem with the Indian context is not economic or political, it's particularly social. But from the earliest beginnings of history, India has had own problem constantly before her. It is the race problem. Now, when he comes to the race problem, so race is an umbrella term जो टैगोर ने इस्तेमाल किया। अब इस अम्ब्रेला टर्म में उन्होंने कास्ट को भी इन्वॉल्व किया है, क्रीड को भी इन्वॉल्व किया है, रिलीजन को भी इन्वॉल्व किया है। तो कई चीजों को उन्होंने रेस के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। द प्रॉब्लम इज वेदर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल shall go on fighting with one another or find out some true basis of reconciliation and mutual help, whether it will be interminable competition or cooperation। अब इंडिया की जैसी स्थिति है, फ्रॉम medieval times to the modern period, we see that इंडिया एक ऐसा नेशन रहा है और एक ऐसा सोशियो पॉलिटिकल रीजन रहा है जहां पे लोग आए, लेकिन हम लोगों ने रेसेस को घोल दिया आपस में। So this is a very Indian version, very Indianized version of social harmony which we have seen. There have been massacres also, there have been genocides also, but then we see that identities जो थी वो आइडेंटिटीज मेंटेन करते हुए लोग एक सोशल हार्मनी की तरफ बढ़े, रिकॉन्सिलिएशन हुआ, जिसको कहते हैं कि घोल के एक अलग ऑपोजिट कल्चर का निर्माण किया गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है, टैगोर कह रहे हैं कि रेस की जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली यही है कि जो एक दो रास्ते हैं इंडियन सिविलाइजेशन के पास आज के टाइम में, एंड ही इज राइटिंग दिस इन 1917 टू 18। तो वो कह रहे हैं कि या तो हम लोग लड़ते रहें, जो आपस के भेद है उन्हीं भेदों पे एक दूसरे पे वार करते रहें, एक दूसरे का हनन करते रहें, या फिर एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे हम लोगों में हार्मनी की भावना आ जाए, जो सोसाइटी है वो स्टेबल हो जाए, और इस स्टेबल सोसाइटी से कुछ हायर पर्पस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड दादा। अब इसमें क्या हुआ कि टैगोर ने कास्ट को भी जब देखा है, जब कास्ट को देखा है तो टैगोर ये कहते हैं कि आपकी जो कास्ट है या कास्ट सिस्टम था, पूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था जो थी वो इसलिए थी
क्योंकि इंडिया को हार्मोनाइज करने थे अलग अलग तरीके के लोगों को एक साथ। तो कास्ट सिस्टम जो था, दैट वाज बेसिकली एक सोशल फेडरेशन। और सोशल फेडरेशन में अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया गया, उनको सोसाइटी में उनकी जगह दी गई, और एक ऐसा सर्कल साइकिल बनाया गया जिससे वो इजीली अडेप्ट हो जाए सोसाइटी में, सोसाइटी की फंक्शनिंग को इफेक्ट ना करे। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत ये आ गई कि जब जो सिस्टम हम लोगों ने उन टाइम्स के लिए बनाया था, क्यूमुलेटिव टाइम्स के लिए बनाया था, वो सिस्टम जो है वो रिजिड हो गया। तो जब कास्ट आपने रिजिड कर दी, सोशल मोबिलिटी नहीं रही, तो वही चीज जो है वो शोषण का कारण बन गई। जो चीज एक टाइम पे आपकी सोशल जरूरत का कारण थी, वही चीज आपके लिए शोषण का कारण हो जाती है। तो जो चेंज है, जो कंटिन्यूअस इन्वेंटिव ह्यूमन माइंड है, वो चलता रहना चाहिए, लेकिन आपको अपनी ह्यूमैनिटी नहीं छोड़नी है। अ स्टेट ऑफ अफेयर्स which have been brought about entirely by the domination in India of the caste system and the blind and lazy habit of relying upon the authority of tradition that are incongruous anachronisms in the present age. तो जब हम लोगों ने कास्ट को एकदम देवताओं की वाणी मान लिया कि अब इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगी, सोशल मोबिलिटी इज अ मिथ। तो सोशल मोबिलिटी इज अ मिथ की वजह से हम लोगों ने ट्रेडिशन से अपने आप को इतना अटैच कर लिया कि उनको कब बदलने की जरूरत थी। We were not able to analyze this, and when we were not able to analyze that when we need to change the traditions, तो उसके बाद ये हुआ कि सोशल डीके का प्रोसेस जो है वो इंडिया में शुरू हो गया। नेक्स्ट स्लाइड दे दो। Now, what are the solutions? Main solution is that while he's analyzing the problem, Tagore is saying that ideals once formed make the mind lazy. It becomes afraid to risk its acquisition in fresh endeavors. तो टैगोर ये कह रहे हैं कि एक बार आपने अपने आइडियल्स बना लिए हैं, अब आप ह्यूमन पॉसिबिलिटी और ह्यूमन कैपेसिटी के हिसाब से आप उस आइडियल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बट इफ यू आर लीविंग दोज आइडियल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, if you are leaving those ideals, or if you are stagnating those ideals, you are just letting them be, and you're not pursuing those ideals in real life, in practical life, तो उन आइडियल्स का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपने उनको इतना ऊंचे सेट कर लिया है कि आप उन तक कभी पहुंच नहीं सकते हैं, तो वो आइडियल्स ही आपके पतन का कारण बन जाएंगे, क्योंकि समाज को लगेगा कि हम लोग कभी वहां तक पहुंच तो सकते नहीं है। जब वहां तक हम लोग कभी पहुंच नहीं सकते हैं, तो जो सोसाइटी है जो उसके करंट स्टेट में है, वही सोसाइटी धीरे धीरे जमने लगेगी, स्टैग्नेट होने लगेगी। और एक बार वो सोसाइटी स्टैग्नेट हो जाती है, फिर उसके पतन का कारण शुरू हो जाता है। एशिया सीज टू टेक एनी न्यू फूड फीडिंग अपॉन इट्स ओन पास्ट। I think there is a technical problem. We are not getting the voice of Devang. एक्चुअली मुझे लगता है देवांश का पार्ट ओवर हो गया। द नेक्स्ट पार्ट इज फ्रॉम अरूप, तो हो सकता है कि वो अपने माइक ऑन करके आ रहे हैं। Okay, bhai, okay. अरूप, आर यू देयर? यस सर। देवांश का प्रेजेंटेशन हो गया या अभी बाकी है? सर मतलब कुछ बातें सर बाकी था, पता नहीं। ओके ओके, लेट देम बैक, लेट देम बैक, वेट कर लेते हैं।
Okay, Arup, now you are present your part. सर वो नहीं आ पाए. I think there is a some. Yes, yes, he's back. Oh, Yes, sir, I'm back. Actually, there was a glitch, so that is why the app stopped. So, Okay, जो okay, काम, nothing to क्रोध, worry. लोभ, मोह, ये सब जो वाइसेस हैं, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ साथ हम लोगों के साथ चल रही हैं, they are actually somewhat complementary to nature. So, Eastern philosophy has always focused on leaving them behind to develop your inner self, spiritual self, consciousness to such a level that world, society, materialism, all these things no longer affect you. And Tagore is talking about an amalgamation, an amalgamation in the truly organic sense. Now, the word organic is very important here. ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर थोप न लीजिए कुछ भी. अगर आपने खुद के ऊपर थोप लिया, और इसकी कंटेक्स्ट में काफी अच्छा एग्जांपल भी है इस किताब में. तो टैगोर बताते हैं कि व्हेन वी सी कि जो ब्रिटिश सिविलाइजेशन का आक्रमण हुआ है इंडियन स्टेट पे, और जो कॉलोनियलिज्म की पूरी धारा चल रही है अभी देश में, उसमें जो सबसे बड़ी खता या सबसे बड़ा जो गिला है टैगोर का, वो ये है कि हमारे आपके पहले के शासक बहुत ज्यादा क्रूर थे. मुगल जो थे, मुगल रूल था या जो पूरा मुस्लिम रूल था, वो काफी क्रूर था. लेकिन इट वाज सॉर्ट ऑफ नेचुरल. पीपल वर लिविंग हियर, पीपल फेल्ट अ सॉर्ट ऑफ एम्पैथी, सॉर्ट ऑफ naturalness with them, that they were one of them now. And that is why उनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, इट वाज जस्ट लाइक अ हाफ वोवन क्लोथ, और उसके अंदर से इंडियन सोशल फैब्रिक ने अपनी जगह बना ली. But colonial structure is something made up of steel, a device made up of steel. So you cannot just place somewhat of your own instinct, somewhat of your own preferences in it slightly. They will be thrown out because it is actually governed by a kingdom which is oceans and seas after you. तो पहली चीज तो ये कि एक एमालगमेशन होना चाहिए. और जो दूसरी बात टैगोर कहते हैं कि सुपर इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए. सो इफ यू थिंक दैट द वेस्टर्न नेशनलिज्म, the whole process has been occurring for a long time, and it has been like 2 or 3 centuries ago when Western nationalism had its rise. So when people think that the concept can be totally picked up and superimposed on India, so he says that it cannot be possible. Every region has its own form of unity, has its own form of union, and if you superimpose one thing over the other, then it will be very wrong. और इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल टैगोर देते हैं कि समडे लाइक स्विट्जरलैंड. Switzerland is a landlocked country in Europe. So someday, if Switzerland just stands up and she says that I want a navy as big as England, so that is not possible because England is an island country and it is surrounded by waters on all sides. So navy is both an asset and a necessity for it. But what will Switzerland do of the navy? It should have something that suits its own populations, and that is why Tagore here becomes the very first, or I think the very profoundest proponent of bottom to top approach. You need to know that what is in the society, what is the demand in the society, and that demand should grow up and reach to the administrators, and from there the administrators will implement that demand downwards. It should not be top to bottom; it should be bottom to up, which was also one of the preferences and one of the aims when planning commission was replaced by Niti Aayog, to change the administration policy formations in Republic of India. Next slide, Dada. So here now I end up with the textual part, which was completely related to the text written by Tagore. And now I hand over to Dada so that he can push more and shed some more light on the contextual part and how Tagore's philosophy and politics and literature, it is more and more relevant and more applicable in the current scenario in which we are living. Thank you. Thank you. Good evening. As Dixit enlightened us on Tagore's nationalism, I am continuing with Tagore's political thought. पर इसके पहले मैं दो चीज़ कहना ज़रूरी मुझे लगता है कि first of all, Tagore was not a political actor or not a political activist or political theorist as such. तो जैसे कि A.G. नूरानी भगत सिंह ट्रायल बुक की इंट्रोडक्शन पे लिखे थे
Bhagat Singh's trial is one of those episodes in the history of our Indian struggle for freedom of which little is known. ऐसे ही जो टेगर का जो राजनीति की सोच पे जो कंट्रीब्यूशन है वो बस उसकी लीक से नहीं, उसके साथ साथ उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी है, सारी चीज़ों से हम लोगों को लेने होंगे। और इसका कारण ये है कि इसका कारण ये है कि जो दुनिया में बढ़ते हुए जो समस्याएं हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि चलते हुए जो राइज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है चल रहे हैं मिडिल ईस्ट पे, जो रेस प्रॉब्लम है, जो जेंडर प्रॉब्लम है, जो सारे प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, इस सारे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे फेस कर सकते हैं और कैसे टैकल कर सकते हैं, इसके बारे पे टेगर का जो अवदान है उसके बारे पे मैं थोड़ा ध्यान खींचना चाहूँगा। पहला है कि इंस्टीट्यूशन वर्सेस ह्यूमन ग्राउंड। जो जैसे हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी पे हॉब्स, लॉक, रूसो, कांट और रॉल्स की जो एक धाराएं आते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से सोसाइटी पे प्रोग्रेस लाना चाहते हैं, और एक तरफ होता है बेंथम, मार्क्स, नील, एडम स्मिथ जैसे चिंतक, जो लोगों ने ह्यूमन ग्राउंड जैसे विकसित बोल रहे थे, ऐसे ह्यूमन ग्राउंड की चेंज से बॉटम टू टॉप अप्रोच की जो बात करते थे। ऐसे ही टेगोर, जिसको कंपैरेटिव अप्रोच भी कहे जाते हैं कई, तो ऐसे ही जैसे हमारे भारत में भीष्म या चाणक्य की जो राष्ट्र व्यवस्था की जो सोच दिखे जाते हैं, इस सोच में हम इंस्टीट्यूशन से देखे जाते हैं कि इंस्टीट्यूशन से सारे प्रोग्रेशन को निश्चित किए जाते हैं। परंतु और एक धाराएं है जो बुद्ध, अशोक, अकबर जैसे राममोहन और टेगर से जो चीज़ आगे बढ़ते हैं, वो है एक कंपैरेटिव अप्रोच, जहाँ से दिखे जाते हैं कि You are not audible. I think yes, it is not audible. I think the network issues is some technical issues, Devansh. Hello. सॉरी सर, There is some okay, now you carry on. ओके, सॉरी सर। तो सर हम लोग जहाँ पर थे कि ये जो इंस्टीट्यूशन वर्सेस ह्यूमन ग्राउंड का जो अप्रोच है, अगर हम लोग ये चीज़, अगर भारत की जो जुडिशियरी और जस्टिस का जो सिस्टम है, या प्राचीन संस्कृत की शास्त्र में जैसे नीति और न्याय, ये दो सब एक्चुअली एक ही ये जस्टिस को बोलने के लिए किए गए थे। परंतु अगर दिखा जाए तो द अमंग द प्रिंसिपल्स यूजेस ऑफ द टर्म नीति आर organization, propriety, and behavioral correctness. In contrast with Niti, the term Nyay stands for a comprehensive concept of realized justice. तो अगर हम लोग देखें कि ये जो दो अप्रोच में भारतवर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कॉम्परेटिव अप्रोच को ही, मुझे लगता है कि वो बताना चाह रहे थे, जहाँ पर ये बॉटम से टॉप तक ये जो प्रगति है समाज की, इसको निश्चित किया जाए। इसके बाद पे हम लोग देखेंगे कि उसके साथ साथ, प्रगति के साथ साथ जो सारे दुविधाएं आएंगे उसको भी कैसे निपटा जाए। जैसे कि ह्यूमैनिटी वर्सेस डेमोक्रेसी, आज के अगर हम लोग इंडिया या सारे विश्व में देखें, जैसे कि बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज और सिस्टम दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर बोले जा रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बट ऑथोरिटेरियन लीडर्स। ये जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स को कैसे निपटा जाए, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोट्स एंड पॉलिसी का जो बात होते हैं, इधर पर आज के ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज का जो सारे पॉलिसीज सत्ता पे रहते हुए और ना भी रहते हुए जो सारे पॉलिसीज के ऊपर फोकस रहते हैं, वो ज़्यादातर वोट की तरफ होते हैं कि वोट परसेंटेज, जिससे जो डिवीजन है वो डिवीजन भी सोसाइटी पे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम लोग गीता की कृष्णा और अर्जुन का डिबेट की तरफ खींचे जाए
चले जाए तो उधर पर दिखा जाएगा कि कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे सर्वोन्नवाधिकारस्थ मां फलेषु कदाचन, काम करते जाओ फल की चिंता मत करो। परंतु इधर पर अर्जुन का भी एक बहुत बड़ी तर्क था जो कहते हैं कि कैसे आगे जाना है उसको भी निश्चित करने होंगे, और जिसके बात कहते हुए टी.एस. इलियट ने उसकी 4 क्वार्टेट्स जो पोएम की बुक है उधर पर उन्होंने लिखे है टिप्पणी करके, एंड डू नॉट थिंक ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन फॉर व्हाट। ऐसे टेगर भी वेस्टर्न फिलोसफी के तहत ऐसे गुड एंड्स और गुड मीन्स की बात डायरेक्टली नहीं की है। उन्होंने गुड एंड्स से गुड मीन्स से गुड एंड्स तक पहुंचने का बात कहते हैं। अगर इस बात को ख्याल रखते हुए हम लोग चलते हुए इकोनॉमी को देखें, ह्यूमन कैपिटलिज्म एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जो आज के दिन बहुत प्रासंगिक एक अवदान रखते हैं, तो इधर पर दिखे जाएंगे कि दुनिया में एक बहुत बड़ी समय में एक लेफ्ट एंड राइट के एक इकोनॉमिक टर्म पे बटे हुए थे, परंतु बात पे आकर ये जो कैपिटलिज्म को सोशलिज्म थियोरिस्ट पे पेश हो जाए कि इसको ह्यूमनाइज करने होंगे, जो मिडिल हुए। टेगर ने बहुत पहले इस बारे पे सोच के गए थे और उसके अवदान भी दिए थे जो भारत में प्रायोगिक भी है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, जब गांधी जी ने जाति के उत्थान के लिए और जातीयतावाद की उत्थान के लिए चरखा की अवतारणा किए थे और कहते कि हर रोज हर व्यक्ति आधे घंटे चरखा पे सूता काटे, उसके साथ उसके दिमाग जातीयतावाद की तरफ गए। इसी समय पे टेगर की सोच को रोमारोला ने लिखे थे। टेगर वाज नॉट टायर्ड टू क्रिटिसाइज दैट पॉलिसी बिकॉज टेगर को लगते थे कि ये एक पुरानी व्यवस्था है और ये एक विचार सुनना शक्तिहीन यंत्र है, जिसको चलाने से कोई भी इंसान के दिमाग का कुछ भी अलग करके कुछ हो नहीं जाते हैं। तो इसके बारे पे प्रोफेसर अमर्त्य सेन उसके आर्गुमेंटेटिव इंडियन बुक पे भी लिखे हैं कि एक्चुअली अगर दिखा जाए कि विदाउट गवर्नमेंट हेल्प उस टाइम और प्रेजेंट टाइम पे भी चरखा से कोई प्रोग्रेसिव या कोई आज के दुनिया पे ब्लीजरेंट है ऐसे कोई इकोनॉमिक्स तो पैदा नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ जब स्टेट की हेल्प की बात आती है तो इससे जो मिडिल वे आते हैं, और इसके साथ साथ टेगर ने जो इस बारे पे भी दुख जताए थे कि जो मैसिंग की जो शिक्षा है और जो डेवलपमेंट ऑफ साइंस है जिसके बारे पे दीक्षित भी बोल रहे थे, ऐसे अगर दिखे जाए कि टेगर ने इस बारे पे बहुत दुख जताए थे कि वेस्टर्न की जो मशीनरी का जो डेवलपमेंट है वो इंडिया उसको एडॉप्ट नहीं कर पाई, इंग्रजों ने भी उसके बारे पे कभी भी फोकस नहीं किए। परंतु उसके साथ साथ टेगर को ये भी मानना था, परंतु सोसाइटी बनना तो वो तो नेचुरल है, परंतु स्टेट ये जो मशीनरी सिस्टम पे इस लूप होल पे गिर ना जाए, कभी भी ये ह्यूमैनिटी को ओवर ना कर जाए, जो आज बहुत जगह पर ये चीज दिखे जाते हैं। और उसके साथ साथ उसका भारत की विज्ञान में भी बहुत बड़ी अवदान रखे है प्रगति के लिए, जो भारत की जो सोच है उसके साथ सिमिलरली चल सकेंगे। जैसे उन्होंने उसका सन ऑफ लॉ को अमेरिका भेजे थे कृषि के विज्ञान को लेने के लिए, और उसको उस समय पे वो ये चीज कहे गए थे कि भारत की किसी का उन्नति डेवलपमेंट पूरा देश की डेवलपमेंट की बराबर होंगे और पूरा देश की प्रगति के निश्चित कर सकते हैं। और वो उसका नोबेल का मनी देकर भी एक बैंक खुले थे जहाँ से वो कृषकों को कोई विदाउट इंटरेस्ट वो लोन देने की व्यवस्था किए थे, जहाँ से कृषकों को उसके जो ट्रैप होते हैं मिडिल टाइम पे इंडिया की हिस्ट्री पे जहाँ देखा जाता है वो ट्रैप किसी को ना मिले। और उसके साथ साथ हमारी देश की बहुत बड़ी विज्ञानी जगदीश चंद्र बसु को इंग्लैंड पे रखकर ऐसे फेलो बनाकर वो इधर से पैसा भेजकर विज्ञानी बनाकर देश पे लाए कि हमारी देश पे विज्ञान की बहुत बड़ी विकास हो। और ये सब इस कारण उसको करना पड़ा, जो उसको बहुत दुख था कि स्टेट की या जो इंग्लिश उस टाइम का जो गवर्नमेंट हुआ करते थे सो कॉल्ड, तो कभी भी ये हेल्प नहीं किए डेवलपमेंट पे। तो आज के दिन बदल गए और स्टेट और नॉन स्टेट जो एक्टर्स है फेमिनिस्ट है वो भी बदल गए हैं। परंतु इस टेगर की इस बारे पे बहुत एक सावधान सतर्क मत था कि हम लोग तो सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि ह्यूमनाइज करने के लिए, परंतु स्टेट को भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होने होंगे, इसलिए कि स्टेट प्रॉफिटेबल ना हो जाए। जैसे कि हम लोग जब रिफॉर्मेशन की बात करते हैं तब ऐसे सो जाते हैं आज के प्रेजेंट सिचुएशन पे कि स्टेट ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दे,
एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो बात है उसके साथ साथ बढ़ते हुए सारी चीज़ों पर स्टेट थोड़ा थोड़ा खुद को हटा ले। परंतु स्टेट जरूर कि स्टेट इम्पोसिबल नहीं होंगे, परंतु अगर स्टेट एज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन हिस्ट्री अगर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छोड़ देंगे तो ये सोसाइटी का भी ब्रेक करना एक तरफ से मतलब शुरुआत होना का ही बराबर हो जाएंगे। इसके बारे में भी उसका बहुत एक सतर्क सोच था और इसके साथ साथ भी उसका ये भी मानना था कि ये जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है इसको भी आगे बढ़ाना है। और ये डेवलपमेंट के साथ उसका और भी एक सोच आते हैं, जैसे कि जो बहुत एक मतलब जैसे महात्मा गांधी का ये मानना था कि जो जैसे कि जौनता की बात है जो विज्ञान और प्रगति के मध्य पंथा में, तो जैसे कि महात्मा गांधी इसके बारे पे उसका राय था कि इसके बारे पे आत्मसंयम की जरूरत है। उस जगह पर टेगर की ये मानना था कि फैमिली का जो प्लानिंग है और जन्म की जो नियंत्रण है आज की हमारी देश की जो बहुत बड़ी समस्या की एक माने जाते हैं पॉपुलेशन, जहाँ पर कैसे सरकार निपटे ये भी एक बड़ी प्रश्न आते हैं और उसके साथ ये सब बहुत पॉलिसी सारी चीज। उस जगह पर टेगर ने बहुत पुरानी समय पे इस बारे पे फैमिली का प्लानिंग एंड ये जो जन्म की नियंत्रण से ही इस चीजों को हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे पे उसका राय था। इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि सोशल वैल्यूज ऑफ ट्रेडिशनल व्यू, मतलब कि हमारी इंडियन सोसाइटी और तब एंड द मिडनाइट चेंज ऑफ सोसाइटी तो दिखे जाते हैं कि हमारी देश 1947 14 अगस्त रात मतलब 15 अगस्त पे जब स्वाधीनता प्राप्त हुई है तब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री वो मिडनाइट से मिलेनियम का ड्रीम इंडिया को दिए थे। परंतु उस सारे परवरिश के साथ हमारे सोसाइटी पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के तहत पार्लियामेंट ये बहुत कुछ चीज आ गए जो वेस्टर्न की एक तरफ से वेस्टर्न लीव्स का कॉपी था। परंतु हमारे इंडियन सोसाइटी जैसे गांधी जी को मानना था कि हमारी देश गांव से आगे बढ़ते हैं, ग्राम से आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही टेगर को भी कुछ जगह पर ये मानना था कि सोसाइटी हमारी देश की जो सोसाइटल जो वैल्यूज है वो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जो वैल्यूज की रिफ्लेक्शन है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एक ही साथ, अर्थात कि हमारी देश की जो बुनियादी जो सोच है उस सोच को हम लोग ऐसे रातों रात वेस्टर्न की व्यू पे तो नहीं चेंज कर सकते हैं। इसके लिए वो जो शिक्षा की व्यवस्थाएं है उसको जोर से इंग्लिश पढ़ाने की जो बात है उस पर उसका बहुत वो दुखी थे। तो इसलिए उन्होंने वो शांति निकेतन, विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये सारे चीज एस्टेब्लिश किए कि कैसे शिक्षा का एक आनंददायी प्रोसेस पे लाए जाए जहाँ पर लोग शिक्षा के बारे पे बहुत इंटरेस्टेड हो। और इसके साथ साथ वो इस बारे पे भी सचेतन थे कि बुनियादी जो शिक्षा की व्यवस्था है, बुनियादी जो सोच है भारत की, वो कभी कुसंस्कार पे ना बदल जाए। अगर दिखे जाए कि गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर की मित्र की एक कन्या की ऑटोबायोग्राफी के बुक ऑटोबायोग्राफी पे नोट पे लिखे थे कि कभी भी अगर प्रतिज्ञा करना है तो प्रतिज्ञा को जैसे भी हो उसको निभाना है। परंतु टैगोर ने इस चीज को बाद पे जब देखे तो इस पे लिखे कि ये कोरिबे तुम्हार मस्तिष्क बंदी नित्य काल, कि कोई भी किसी की इंसान की दिमाग को कभी भी अवध नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी अवदान थे उसका राजनीति में जो राममोहन से हम लोग लेगेसी की तरफ आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं कि विचार की साधना था, मस्तिष्क की साधना था। वो जब यूएसएसआर को भी इस बारे पे क्रिटिसाइज किए थे, इसके बारे पे वो बोले थे कि कभी भी मतलब कोई भी आदर्श ऐसे ना हो जाए कि वो इंसान की स्वाधीनता की इंडिपेंडेंस को कम कर दे। ऐसे ही वो उस नोटबुक पे लिखे थे कि प्रतिज्ञा अगर दिखे जाए कि प्रतिज्ञा पालन करना कोई बहुत बड़ी वजह बन गए है तो उसको तभी भी छोड़ देना चाहिए। तो उसके बुनियादी शिक्षा के साथ साथ उसके प्रोग्रेशन को भी आगे बढ़ाने की जो सोच था वो बहुत बरकरार था। इसलिए कि आज के वर्तमान दुनिया में ये वितर्क बहुत बार आते हैं कि पीछे की सोच छोड़कर आगे जाए तो इसका रिस्क लेने का जो डर, परंतु टैगोर ने उस चीज को बहुत पहले इसका हल देकर गए हैं। और इसके साथ साथ जो चीज आते हैं इंडियन सोसाइटी का जो प्रॉब्लम जो प्रेजेंट पे आते हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड आइडेंटिटी प्रॉब्लम, जो राइज ऑफ जेंडर पॉलिटिक्स, राइज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स लाइक कास्ट क्लास, और सबसे बड़ी बात है रीजनल एंड द रिलीजियन पॉलिटिक्स, ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम में एक माने जाते हैं। परंतु टैगोर ने इसके समाधान में बहुत पहले ही इस चीज को, और उन्होंने उसका नेशनलिज्म बुक पे भी लिख गए थे कि हमारी प्रॉब्लम पॉलिटिकल नहीं है, बहुत ज्यादा सोशल है।
पे सोशल प्रॉब्लमों को डील करने के लिए सोसाइटी पे ही फोकस करने होंगे। तो ऐसे ही वो यूनिटी को जैसे सोसाइटी पे कलेक्टिव यूनिटी को जैसे फोकस किए थे, उसके साथ साथ वो डाइवर्सिटी और इंडिविजुअल जो व्यू है और द इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है, इसको भी वो स्वीकृति दिए थे। परंतु और इसके साथ साथ ये जो सारे जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो मामला है, इसको निपटने के लिए वो अपने सोसाइटल एक्टिविटी से एक बहुत अच्छी उदाहरण निकले थे, एग्जाम्पल, कि वो उत्सव प्रतिष्ठा किए थे, जो उत्सव धर्म से नहीं, एक इंसानियत से, एक काम की वजह से। जैसे हलकर्षण उत्सव, ये था श्रमिक के लिए जब नवान्न की उत्सव, जब धान मार्च से घर पे आते हैं। तो ये जो चीज है, ये हर एक फार्मर्स को, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, जो भी हो, उसको उसके सुख देते हैं। उसके साथ साथ वो श्री निकेतन स्थापन किए थे। ये जो सारे उत्सव थे जहाँ पर इंसान एक हो सके, कभी भी उत्सव ये ना बन जाए जैसे कि आज दिखे जाते हैं कि उत्सव, ऐसे बहुत सारे धर्मीय उत्सव को इतना अल्ट्रा बनाए जाते हैं कभी कभी, जो बात पे दिक्कत पैदा करता है। परंतु वो ये सारे उत्सव ऐसे रचना किए थे, एस्टेब्लिश किए थे, जिससे कि एकता बढ़े सोसाइटी पे। जैसे कि सैमुअल पे हंटिंगटन ने आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन जब स्टार्ट हुए पूरे वर्ल्ड पे जब मने जाते हैं, तब उसका वो बुक पे उन्होंने इस बारे पे जिक्र किए थे कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये कुछ पार्टों पे रिलीजियन ये बटे हुए हैं। परंतु टेगर को तो ऐसे एकदम मानना नहीं था। वो ह्यूमैनिटी और पूरे वर्ल्ड ह्यूमन ग्राउंड से ही बने हुए हैं, इसके बारे पे वो बहुत निश्चित थे। और इसके साथ साथ और इसका जो विज्ञान भी है, ये विज्ञान भी उन्होंने ऐसे दिखाए थे कि जब ये जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, मतलब इंसान ये जो आइडेंटिटी पार्टी बेस्ड होते जा रहे हैं, इसको एज ए रिलीजियन बेस्ड होते जा रहे हैं, इसको जैसे कि 1934 पे जब बिहार पे फ्लोट हुए थे, तब गांधी जी ने इसके बारे जब बिहार देखने गए थे, तब वो इंसान सारे लोगों को ये कहे थे कि ये जो बिहार की जो कास्ट या देश पे जो कास्ट की प्रॉब्लम है, इसके कारण ये फ्लोट हुए हैं। परंतु टेगर ने इस चीज पे बहुत एक वितर्क तैयार किए थे और बहुत बड़ी प्रतिवाद किए थे कि इंसान पे जो मिस इंटरप्रिटेशन है, इससे ये बहुत बड़ी एक कॉन्सिक्वेंस पैदा कर सकते हैं। तो उसके जो सोच थे, ये बहुत विज्ञान सचेतनता की तरफ थे, परंतु उसके साथ साथ जो हमारी सोसाइटी के जो अच्छाई है, उसको भी लेके जाने का तहत थे। अब आते हैं उसके जो ह्यूमैनिटिक्स, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में, अर्थात मैं पहले ही बताया कि पॉलिटिक्स में तो ह्यूमैनिटी का, ह्यूमनिज्म को बहुत जोर से माने जाते हैं, परंतु टेगर को पॉलिटिक्स के एज ए पॉलिटिकल थ्योरिस्ट तो ऐसे कभी दिखे नहीं जाते हैं। परंतु अब समय आ गया है जब उसको लेने होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस अगेंस्ट सर्वाइव, मतलब आज के दुनिया के ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है, जो सोच से होते हैं, अगर हम लोग लौट कर जाए, महान साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहे थे, परंतु वो था मेटीरियलिस्टिकली। परंतु हम लोग पॉलिटिकल प्रॉब्लम से, मेटीरियल प्रॉब्लम से, सारे प्रॉब्लम्स पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बहुत ज़्यादा खींचे जाते हैं। परंतु उस जगह पर जो एग्जिस्टेंस का बात है, अगर उसको रखने के लिए टेगर के पास बहुत बड़ी उपाय थे कि कलेक्टिवली काम करना, कलेक्टिवली एक साथ आगे जाना। ये सोसाइटी की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट मीन्स द ऑन द वे स्टैटिस्टिकल ग्रोथ, ये स्टैटिस्टिकली प्रोग्रेशन। ये सारे समय पे ये जरूरी नहीं होता है कि सारे लोगों की जो बॉटम की जो से टॉप सारे चीज़ों का ग्रोथ हो रहा है। इस चीज़ को निश्चित करने के लिए वो कलेक्टिव सोशल ग्रोथ की तरफ थे। और सोसाइटी का जो वैल्यू है, वो स्टेट कभी भी ओवर नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम दुनिया पे आज है, जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम है, कुछ दिनों के साउथ इंडिया पे चलते हुए स्ट्रोम को हम लोग देख रहे हैं, ऐसे कि बे ऑफ बंगाल पे भी एक बहुत बड़ी स्ट्रोम आ रहे हैं। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स दिक्कत चल रहे हैं, इसके बारे पे भी टेगर का एक बहुत बढ़िया बयान है। वो मरुभूमि में वृक्षारोपण और उसके मतलब उसके कैसे हम लोग वृक्षारोपण के उत्सव उन्होंने प्रतिष्ठा किए थे, और इसके जो सचेतनता इंसान की दिल और दिमाग पे रहना चाहिए। और बस ये जो एग्जिस्टेंसी है, ये बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से नहीं, ये कलेक्टिवली हो सकता है, अगर नेचर के प्रति प्यार रहे उससे ही बन सकता है।
उसके ऊपर उसका बहुत बड़ी उसके साथ साथ इंडिविजुअलिज्म है वो वैसे और लिबरलिज्म का आइडियलिज्म नहीं होता है पर सोसाइटल हर इंसान जो डाइवर्सिफाई जो जेन्युइन एंटिटी है वो लोग भी नॉन एग्रीगेटेड है और ये सारी चीज़ जो मिनिमम पॉलिटिक्स के हमने हम लोग आए थे तो ये सारी चीज़ें जो मैं जुक्ति और ये सारे जो जुक्ति का जो हम भारत में जाता है तो सकारात्मक जो तेगा पे आता है मतलब क्योंकि तेगा ने ये चीज़ सीखे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है उन्होंने चरित्र पूरे सामना किया कि अगेंस्ट एक दिए थे जो प्रासाद है उसकी पहाड़ दुनिया है जो किसी बड़ी एक वजह जो दुनिया में हमें बताते जा रहे हैं आज भी हमें दिखाई जाए जो जीडीपी या जो जॉब सारे चीज से बार सबसे ऐसे जो जगह पर की वो सोच बहुत बड़ी लैंडिंग बनाना है जो इजीली से बनता है बस ये हाइड्रोजन लेवल बड़ी हो सकता है इस साथ जो हमारे पास समय बता रहा है पॉलिटिक्स के गवर्नमेंट को सॉल्यूशन हो या आइडियल पॉलिसी को और इंसान की अपनी लाइफ में जहाँ पर सॉल्यूशन भारत की पूरे दे दिए थे कि सारे लोग डील कर सारे इसको बार आगे वाले से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं कर सकता है जैसे सोशल ने उसका नियम दिए थे कि 40 साल वाले बाद हमारे जो मॉडर्न इंडियंस पॉलिटिकल अगर वो डालता रहे क्या होता है आज हम लोग जिन सालों में 75 जो साल है वो पूरा करा जा रहा है हमारा डर रहे थे जरूर बहुत दूर लेकिन अपना शिक्षा ऐसी चीज हमारे देश में लाए हुए हैं तो लोग इसलिए रीजन जो से हम लोग तरीके से और सबसे बड़ी बात जो ऐसे जो आज के दिन में और एक रिलीजियन पॉलिटिकल जो ह्यूमन फॉलो कर रहे हैं इस का देश के लिए नहीं लोग देश के लिए है ह्यूमनिज्म को आगे बढ़ाया जाए जो बहुत बड़ी समाधान का देश है very line or question circle this opportunity thank you very much. Okay. Thank you, Devan and Arunmati for wonderful structured presentation on Tagore's nationalism. It is based on context and the cases and also alteration of indigenous model of nationalism. Now the session is open for discussion, questions and the comments from any of the audience side. Feel free to ask the questions and feel free to comment on such a wonderful lecture given by both of you. Anybody? Questions first of all from the end, then begin. Yeah, should I? Okay. So first of all, I would like to congratulate both the students and scholars
was presented very comprehensively when such a interesting topic is Tagore and nationalism. मेरा क्वेश्चन ये है कि हम टेक्निकल थियरी पॉलिटिकल थियरी में हमें डेट पढ़ते हैं, जैसे इंडियन आइडियोलॉजी का डेट हम हमेशा पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इंडियन आइडियोलॉजी का जो डेट है उसमें जो स्कॉलर है चाहे वो रॉबर्ट लीले के बारे में बात करें या लिस्ट के बारे में बात करेंगे, उन लोगों का मानना है कि बेसिकली आइडियोलॉजी है उसका हिंट हो रहा है, अब एक एग्जांपल नहीं है, कोई वैसा नहीं कर रहा है ये प्रकार का बिहेवियर को, लेकिन उसके इस बेस के समय बाद जो है बात को शायद करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड में अभी आइडियोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है, और जो थर्ड वर्ल्ड में आइडियोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है वो आइडियोलॉजी का जो शेप है नेशनलिज्म है। इन दैट कि मेरा दोनों क्वेरी है कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, does nationalism exist in the third world or not? What is your view on this? I would like first I would reply to this question, and then I think. Thank you. मैं जरूर करना हूँ कि नेशनलिज्म है कि वर्तमान में है। बस एक छोटी सी एग्जाम्पल, जब महात्मा गांधी टेक गए थे वो इसके बारे में अभिमत आया है, महात्मा गांधी आए थे कि अगर ये चीज तो बहुत अच्छा होता, मतलब विश्व से क्रिया मुसलमान के लिए हम तैयारी नहीं रहते, परंतु जैसे कि हम नहीं है तो ऐसे लोग हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है सो जाता है, तो उस जगह पर नेशनलिज्म फोकस कर आगे आए हैं, तो नेशनलिज्म जरूर है। और अगर समाज में देखा जाए बहुत बड़ी कभी बाहर रहते हैं तो कभी ले जा सकते हैं और बात हो सकता है। ओके फाइन, गुड। सर एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि नेशनलिज्म का जो अल्टीरियर मोटिव है वो क्या है। अब नेशनलिज्म जो है वो दो धारी तलवार है मेरे हिसाब से। आप एक स्कैटर्ड पॉपुलेशन को, डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन को एक साथ ला सकते हैं, नेशन की स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन किसी नेशनलिज्म से आप है माइन्यूट सी डिफरेंसेस हैं हम लोगों के बीच, उनको ना मान के हम लोग एक में ठोक भी सकते हैं। और वर्ल्ड के साथ ये रहा है कि जैसे स्पेसिफिकली अगर इंडिया का कॉन्सेप्ट देखें, यहाँ पे जो नेशन का कॉन्सेप्ट है वो कॉलोनियलिज्म बाद आया है। हम लोग राष्ट्र निर्माण और वो जो है वैदिक इंटरफेस पे देखें तो कई बार राष्ट्र शब्द आता है, लेकिन जो स्पेसिफिक नेशन जिसको हम लोग कहते हैं वेरी वेस्टर्न सेंस में जो नेशन की बात है वो हम लोगों को कॉलोनियलिज्म के बाद से इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान जन में इसका एक और वो लोग एक साथ आए कि पहले बाल लड़ना है, को हटाना है और एक स्थापना करनी है। टैगोर का अगर हम लोग इसमें चिंतन देखते हैं मुझे लगा है जितना मैंने पढ़ा है कि टैगोर बहुत आध्यात्मिक इंसान थे, और आध्यात्म में ऐसी चीज है इसमें आपको ये बताया जाता है कि आप परमात्मा क्या हैं, वो परमात्मा हर इंसान में उतना ही है। So you can see the supernatural in every individual. You can see beyond his material existence or beyond his individual existence. You can feel a sort of compassion with him. और उसी नेशनलिज्म के खिलाफ जो विरोध था वो टैगोर का इसलिए था कि टैगोर ने उस नेशनलिज्म मानने से मना कर दिया है जो नेशनलिज्म इंसानों को इंसानों के खिलाफ खड़ा करते रहा है, इंसानों की हक करवा रहा है, उनको लुटवा रहा है, तभी दूसरों को और दबाव चल रहा है।
तो टैगोर मान रहे हैं कि जो उनका बिलीफ ह्यूमैनिटी में वो स्पिरिचुअल बेसिस से बिलीव आ रहा है, और इसलिए थर्ड वर्ल्ड का नेशनलिज्म है। थर्ड वर्ल्ड नेशनलिज्म आज के टाइम में जब पूरी दुनिया एग्रीगेटेड कंट्रीज में बटी हुई है, वो ये पुराना प्रिमिटिव कम्युनिज्म की स्टेज नहीं है, एक मॉडर्न स्टेट के अंदर हम सब लोग चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थर्ड वर्ल्ड में भी नेशनलिज्म जो है वो तब तक ही सही है जब तक एक सेग्रीगेटेड बाउंड्री के अंतर्गत नेशन पूरा एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है। अगर उसके बाद भी हम नेशनलिज्म को उसी गति से आते रहते हैं तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि उस नेशन जो बना हुआ नेशन है उसके अंदर जो लोग हैं, जो अंदर जो लोग बचे हैं, हम लोग उनके जो आपस में डिफरेंसेस हैं, चाहे वो भाषा का हो, वेशभूषा का हो, बिलीफ का हो, वेद का हो, रिलीजन का हो, क्रीड का हो, नेशनलिज्म नाम पे हम लोग उन पे कुछ और करने लगते हैं। एक यूनिफॉर्मिटी, शायद मोस्टली मेजॉरिटी यूनिफॉर्मिटी हो, तो ये नेशनलिज्म का डेफिनेशन कर रहा है, ये टिरनी और मेजॉरिटेरियनिज्म दोनों की तरफ बैठता है, ऐसा मानना है मेरा। Good, very outstanding reply. Anyone else? Anyone want to ask question from the both? Devang, share that. You can proceed. एक्टिव नहीं है। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ देवान से, एक सवाल देवान से और एक करूँ से। पहले मैं देवान से पूछूं, टैगोर जब ये किताब लिख रहे होते हैं, जब उन्होंने लिखा है ये किताब, तो एक तरीके से बाद में एज वैसे तो ये लो लेक्चर एक क्या कहते हैं बहुत को मटेरियलिज्म की आलोचना करते हैं, जापान का हो या अमेरिका का हो, तो मटेरियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं और अपने लेक्चर में भी बोला कि उन्होंने वेस्टर्न कल्चर भी गहरे में खड़ा करते हैं और जो इंडियन ट्रेडिशन है उसको भी गहरे में खड़ा करते हैं और प्रयास करते हैं। तो वहाँ पे ये कहते हैं कि पश्चिम ने तो पूर्व को अपने कल्चर से आया है, लेकिन पूर्व को चाहिए भारत के संदर्भ में या साउथ एशिया के संदर्भ में वो बेसिकली कह रहे होते हैं कि पूर्व को चाहिए कि वो पश्चिम को पश्चिम को अपना परिचय कराए, और वो ये रिलीजन के संदर्भ में कह रहे हैं जो तरीके लिखी जाती होती है। तो इस संदर्भ में हम देखें जो उन देवी जो थी या भोटा वाला वाली जो कल्चर था उससे तो हमने अभी पूरी दुनिया ने ग्रहण किया क्या, और आदि का एक तरीके से एजुकेशन में गया था तो मैंने कह सकते, लेकिन बहुत हद तक वो सर्वव्याप्त है। तो वो तो आज तक हमारा डोमिनेट कर रहे हैं अपने कल्चर और आइडियोलॉजी के रूप में। कहीं हमने कमी रह गई है कि हम अपना परिचय ठीक तरीके से नहीं करा पाए। सर असल में परिचय करा पाए या ना करा पाए उससे पहले हम लोग को शायद ये समझना चाहिए परिचय हुआ कैसे। तो वेस्ट का जो परिचय थर्ड वर्ल्ड में हुआ है वो ज्यादातर आक्रामक शासकों के रूप में हुआ। भारतीय सभ्यता को हटाते हैं अगर ईस्टर्न फूड सिविलाइजेशन हम लोग देखते हैं तो काफी सिविलाइजेशन नहीं है वो। उन्होंने काम से काम रखा है, सोशल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है, और जैसे टैगोर भी लिखते हैं कि वो रिचुअली को एनहांस एक बार मटेरियल नहीं अगर पूरी हो गई तो वो उसको स्पिरिचुअली एनहांस करने की कोशिश करने लगे हमारे यहाँ की सभ्यता के लोग। उसी के अंतर्गत जितने भी वेद हैं, पुराण है, शास्त्र हैं, अब तो खैर वो काफी एक्सट्रापोलेटेड उनके जितने भी इंटरप्रिटेशंस हैं वो मिलने लगे हैं, होंगा पंडितों का राज हो गया। लेकिन ये सब जो था ये स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट था। तो हम लोग को परिचय होने की बात है, वो परिचय हम लोगों का वेस्ट से
तरीके से नहीं हुआ जैसे वेस्ट का हम लोगों से हुआ। अब जब आप आक्रामक शासकों के रूप में आते हैं तो आप अपने साथ साथ एक पूरा हेजेमोनिक मैकेनिज्म लाते हैं साथ में। वो हेजेमोनिक मैकेनिज्म ना डीप घर कर जाता है। जब आप किसी समाज में 100 साल 200 साल 250 साल तक बिता देते हैं कि नेटिव पॉपुलेशन पे उसका बहुत असर पड़ जाता है। उसका ना असर हुआ कि पहली बात जो ओरिजिनलिटी थी हम लोगों की, वो ओरिजिनलिटी को मारा गया। अब ओरिजिनलिटी इसमें मारा गया इन सेंस कि उनसे भेदभाव करने की आज के जो वैसे उससे भेदभाव करने की कोई जरूरत नहीं है। जो जैसे इवेंट लेके ओरिजिनलिटी को मारा गया तो जो ओरिजिनल ईस्टर्न सिविलाइजेशन या ईस्टर्न माइंड था वो खत्म हुआ। फिर जो हेजेमनी के तौर पे जब हम लोगों ने देखा कि एक दूसरी रेस है, एशियन रेस है, गोरे लोग हैं, वो हमारे ऊपर हैं, हम पे शासन कर रहे हैं, उनका कानून हम मानना पड़ रहा है। तो एक तरीके से एक ऐसी भावना कि हम इंटीरियर है वो सुपीरियर है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। और इसकी छाप इतनी ज्यादा डीप है आज भी कि मुझे लगता है कि भारत में जो गोरे को इतना प्रेफरेंस दिया जाता है, व्हाइट को इतना प्रेफरेंस दिया जाता है, ये भी कॉलोनियल लेगेसी के साथ हम लोगों को मिला है। तो तभी जो इंडियंस है वो इंडियंस का पर्टिकुलरली जो कॉम्प्लेक्स है व्हाइट स्किन से, वो भी एक कॉलोनियल लेगेसी है। अब ईस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ ये हुई कि हम लोगों ने आध्यात्म का परिचय उनसे क्यों नहीं कराया। हम लोगों ने आध्यात्म का परिचय इसलिए नहीं कराया कि शायद हम लोग वो आध्यात्म ढूंढने में अभी सक्षम रहे, बहुत हद तक सक्षम रहे। क्योंकि जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल नॉलेज था जो एंशिएंट टाइम से लेके अब तक इंसान करते धीरे कलेक्टेड विजडम थी, वो विजडम कहीं हो गई और रिलीजन का फॉर्म लेते हुए स्पिरिचुअलिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन इंडियन सोसाइटी में लहर की तरह काम किया है, आज भी कर रहा है। रिलीजन को छोड़ के अगर इंसान सिर्फ स्पिरिचुअल विजडम आ जाए, सारे ग्रंथों चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, तो उसमें घूम फिर के माइनर डिफरेंसेस जो ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस है, जो जगह जहाँ से जो चीज ओरिजिनेट हो रही है उसकी छाप और रहेगी। इस्लाम में हर इसलिए माना जाता है क्योंकि खुदा ने नहीं बताया कह रहा है, क्योंकि जंगल में मतलब रेगिस्तान में हरियाली को लोग आइडियलाइज करते हैं। तो ये माइनर डिफरेंस छोड़ दिया जाए तो रिचुअल विजडम कलेक्टिव विजडम सारे रिलीजन्स एक है, लेकिन वो जब नेटिव पॉपुलेशन खुद ही नहीं पाई तो उसको पोलराइज करने का कोई सीन नहीं रह गया। और दूसरी चीज पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये हम लोगों ने अपने रिचुअल विजडम को गलत जगह लगाया और सॉफ्ट पावर बनाने की कोशिश कर दी। सॉफ्ट पावर जैसे योग है, तो योग पहली चीज ये कोई योग करना नहीं है जैसे एंशिएंट टेक्स्ट में दिया हुआ है। वो योग completely different है, it is an inward process, completely focused on breathing. It is not a physical process जैसे लोगों को लगता है। योगा is completely an internal process. It is a conscious process. लेकिन पहली बात ये है कि हम लोग खुद योगा को नहीं समझ पाए, फिर बाबा आए योग खाए और उसके बाद हमने योगा को सॉफ्ट पावर बना के इस्तेमाल किया, बल्कि it should be a medium to actually go to the inward side of your personality, find your purpose, find your meaning, connect to some higher powers so that you can have a better clarity of mind. So I think कि जो Eastern civilizations का colonial baggage है और जो एक धुंधलापन ambiguity है हम लोग के आसपास, इसकी वजह से हम लोग अपनी जो वर्च्यूज थी, अपनी जो विजडम थी, वो पॉपुलराइज नहीं कर पाए और उनके जो वाइसेस थे वो अपलोड हो रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अरुण से छोटा सवाल जैसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो दोनों लेक्चर थे या जो राष्ट्रवाद है टैगोर, ये 1917 में पब्लिश होता है और गीतांजलि से ले आ जाती है 1910 में। तो और जितना मैंने गीतांजलि पढ़ा है समझने में
मैं बदला तो नहीं आने आने मैंने दूसरे वर्जन आया थोड़ा बहुत अंग्रेजी वाला वर्जन पढ़ा तो मैं वो तो एक तरीके से वो लिटरेचर बजाय रिचुअल बॉलीवुड में करें कि इंडिविजुअल से एक आर्ट करना चाहता है उस थीम से तो कम्प्लीटली सारी कविताएं वहीं ले जा प्रयास भी हैं तो क्या गीतांजलि लिखी गई होती है 1910 में तो ये जो 1917 में टैगोर आशावाद आता है कि कुछ भिन्न हो सकता था कि स्पिरिचुअल ना होता जिस समय वो व्याख्या करने का प्रयास करते हैं ऐसी कोई संभावना थी। Okay, so anyone want to ask a question? Anyone else? Yes, please. बात रखिए आप। हमारी बात मैं दोनों ही लोगों को रूप को भी और जवानों को अंडरस्टैंडिंग है और दूसरा मेरा बार में राष्ट्र बनने की कहानी और उसकी प्रॉब्लम रही है वो अभी तक चल जा रहे हैं। हमारा क्या राष्ट्र बनने में रही है पहला जो फैसला करे वो तो
उसमें जो मिलिटराइजेशन हाथ या मिलिट्री ट्रैक्टर के रूप में दिख रही है और बना यह लग रहा है कि उसमें जो पूंजी जरूरत थी वह सरकार की मिलिट्री वर्ग में प्रोवाइड कराई और में उन्होंने कहा कि हर एक देश का ट्रैक्टर वर्ग हो जाए तो बदले में लाभों को देंगे यह माना जाता है कि इंडिया में जो नीति वाला था मतलब क्या मिला रहा था एक पावर था अपने विश्वास के लिए के लिए आई पावर जमा राज्य के बारे में रहा है या पार्टी करके हमारा जा रहा है और भी चलता है दूसरा जो राष्ट्र समस्या को मैं गिरी थी अब बदल माना जा रहा है कि कोई थी वो है जैसे कल्याण में पैटर्न जिससे को प्रोडक्शन हो आसानी से हो और क्योंकि वो बेचने वाला जाने इसीलिए कॉमेडी की जरूरत आप सोचता है जाएगा कि एक तो राष्ट्र के बने में जो ज्ञानात्मक रहता है प्रारंभ से वो हमेशा करते रहे और राष्ट्र को तो किया गया तो उसमें रहा ग्रेटर लोग जब तो रैशनलाइजेशन किया और ऐसा रैशनलाइजेशन जिसमें उन्होंने माना तरीके की आगे बढ़ जहाँ तक टैगोर का सवाल है तो उन्होंने बड़े स्पष्ट है और जानकारी बिल्कुल स्पष्ट इसीलिए उन्होंने तैयारी तरीके से बार भी जानकारी कर दिया ध्यान देना जरूरी है कि बहुत सारे लोग बात करेंगे उसको लेकर भी टैगोर क्या सोसाइटी और आज के की बात हो रही थी प्रॉब्लम जान रहे थे दूसरी दिक्कत टैगोर या बहुत सारे विचारक में आता है माना कि राष्ट्र के बुनियादी मेरा था समझते हैं कि आज जो राज्य है वो एक एडिटोरियल करने तो आधारवाद मतलब जो है कोई रूप में और हमारे जो समझ बात आ रही है बाकी मतलब आता है रूप में से बहुत ध्यान तरीके से रचना किया और हम दोनों को करना चाहेंगे क्या करना रहा था और कोई है अपना क्वेश्चन या आपने अपना पॉइंट आउट करना चाहता है भैया देखिए जो बात कही बिल्कुल सही बात है जो वेस्टर्न कॉन्सेप्शन है जहाँ लिबरलिज्म माना जाता है उसकी अपनी परिस्थितियाँ हैं अपनी कॉन्सेप्शन को डेवलप करता है और उसको हम अगर भारत अंदर में देखते हैं देखने को मिलता है हमारी प्रवृत्ति कभी भी आक्रांतकारी नहीं रही हम कभी आक्रांतकारी नहीं रहे सोसाइटी सोसाइटी रही अभी जैसे हम कम्युनिज्म की बात की है वो एक जंप है क्योंकि सोसाइटी एक बड़ा हिस्सा है आज भी एक रेलियन सोसाइटी है या हम एक तरीके से देखें फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में पूरी तरीके से कन्वर्ट ही नहीं हो पाए अभी हम उससे